this lecture, we have discussed about the factors affecting the setting of the iron industry, and we have discussed about the impurities in the iron ore. Now, in this lecture, we are going to discuss how we can remove those impurities. Like, we are going to use a furnace that is called blast furnace. Now, in this lecture, we are going to majorly discuss about the blast furnace, how it works and helps to remove the impurities from the iron ore. This is one of the important concept for this iron, because you are going to get going to know many things about this furnace, how it works, and what are the materials which we need for the blast furnace. Okay, so first of all, what are the requirements you need to work in this blast furnace? Number one is, for in the form of fuel, you need coke. In the form of fuel, you need coke, not coal. We will discuss why. Okay. Second important thing you need is iron ore, and third is limestone. We will discuss individually about the role of these three. So coke, iron ore and limestone we are going to introduce from the top into the blast furnace, and here it is a setup. Now you can see the blast furnace. This is a blast furnace. Okay, now this is a inlet जहाँ से हम लोग एक हॉट एयर को पास करते हैं, और ये हॉट एयर क्या जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, और इसके अंदर क्या है, आपका पूरा इम्प्योरिटीज़ है. इसके अंदर यू हैव इंट्रोड्यूस्ड आयरन और लाइमस्टोन और कोक, इस चीज़ का मिक्सचर है. ठीक है, फिर ये जो हॉट एयर जाती है इसको मेल्ट करती है वॉट एवर. तो ये सब मेल्टिंग होके दो चीज़ों में डिवीजन होता है. एक पाइप ये जा रही है, एक पाइप ये जा रही है. ये जो एक पाइप है, दिस पाइप इज नोन एज स्लैग. स्लैग पाइप नहीं है, पाइप का नाम स्लैग नहीं है. इस पाइप के थ्रू यहाँ पे कुछ चीज़ का कलेक्शन हो रहा है. दिस कलेक्शन इज नोन एज स्लैग. This collection is known as slag. And second is molten iron. When this iron gets melted, then it is collected in the second container, that is called molten iron. Now what is this slag? This is an important thing. What is slag? और ये जो molten iron है ये भी क्या है, that is we are going to discuss. So आपको ये blast furnace का arrangement तो समझ में आ ही गया होगा कि किस किस चीज़ों को कहाँ से डाल रहे हैं. हॉट एयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है, हॉट एयर को हम लोग कहाँ से ब्लो करते हैं, फ्रॉम द लोअर साइड. अब इसके अंदर जो आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड इज लाइक Fe2O3. yesterday we discussed that iron जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन, and for this we use silicon and manganese to deoxidize it. That is very important element. Okay, so now what is our aim? Our aim is to deoxidize this so as to protect it from the corrosion. We want to increase the strength. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, we convert iron oxide into liquid iron into hot metal. अब ये लिक्विड आयरन करते हैं. इस लिक्विड आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं, पिग आयरन. दिस इज इंपॉर्टेंट. लिक्विड आयरन इज नोन एज पिग आयरन. और ये जो आपको स्लैग है, स्लैग, व्हाट डू यू मीन बाय स्लैग? एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्लैग? सो स्लैग का मतलब क्या होता है, जो लिक्विड के फॉर्म में इंप्योरिटीज होती हैं. If you have impurity in the form of liquid and some gases, what are the gases which you get in the blast furnace as a impurity? Carbon monoxide and carbon dioxide. These two are the important gases which you get in the slag, along with the slag. Okay, ये तो हो गया आपका blast furnace की बात. फिर आपको ये पता होना चाहिए, हम और कर रहे हैं बहुत देर से. So you should know कि कौन सा ore है. What is the name of the ore from which you get the iron? The name of the ore is hematite, magnetite, limonite. बहुत ध्यान से सुनिएगा ये आप. हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये जो ओर हैं तीनों, इन तीनों ओर से यू विल गेट द आयरन. इन राजस्थान मेजरली यू गेट ओर मैग्नेटाइट. वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर कि राजस्थान के अंदर हाउ आयरन इज इन्फ्लुएंशियल एंड हाउ आयरन हेल्प्स. ओके, किस तरीके से वो मिलता है, किस रीजन में मिलता है, एंड क्या होता है. ठीक है, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड लिमोनाइट, दीज थ्री आर द इंपॉर्टेंट ओर्स. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज this is important to understand why we use carbon monoxide, why we use coke instead of coal. Now my next question is why coke is used. So you may jot down this question, exam में पूछा जाएगा कि why coke is used. कोक को क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए, जो कोक है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम
कहाँ से निकलता है ये? डिराइव फ्रॉम कोल ओनली बाई डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मेथड. साइंस में आपने ये पढ़ा होगा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यू हीट इट. ओके, सॉरी, हीटेड मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कैरिड आउट. सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में कोल का एक प्रोडक्ट होता है कोक. कोल गेट्स कन्वर्ट इनटू कोक. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कोक? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर हम कोल को एज एन फ्यूल यूज करते हैं तो कोल के अंदर खुद के अंदर सल्फर जैसी इम्प्योरिटीज होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? पोल्यूशन होता है क्रिएट. ठीक है, और इट इज डिजास्ट्रस. सो टू अवॉइड दोज इम्प्योरिटीज वी यूज कोक. अब कोक के अंदर क्या होता है? कोक हैज वेरी लेस इम्प्योरिटीज. दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि कोक हैज लेस इम्प्योरिटीज, वेरी लेस इम्प्योरिटीज. और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है? 90 से 95% इसके अंदर कार्बन होता है. तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जैसे कोल है, कोल के अंदर सबसे बेस्ट कोल कौन सा होता है? एंथ्रासाइट. क्यों होता है एंथ्रासाइट? Because the carbon content in the anthracite is more than 90%. So if you have a good percentage of carbon, then it is going to prove as a good fuel. So coke is one of the product which possess 90 to 95% carbon, and it do not have much impurities. So ये दोनों चीज़ें हमारे सॉर्ट आउट हो जाती हैं. और जो कोक है उसकी टेंडेंसी इतनी अच्छी होती है कि वो इजीली आयरन को मेल्ट कर सकता है. कोल कैन नॉट मेल्ट आयरन इजीली like of coke. So these two are the important factors. Now another, ये तो हो गया एक क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करना था कि हम लोग क्यों फ्यूल को कोक के फॉर्म में यूज कर रहे हैं. अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ, हैव यू रिटन दिस? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई लाइमस्टोन इज यूज्ड. भाई लाइमस्टोन को क्यों यूज किया जा रहा है? ये भी एक क्वेश्चन है कि व्हाई लाइमस्टोन इज यूज्ड. व्हाई लाइमस्टोन इज यूज्ड. आपको हर चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए. ऐसा थोड़ी ना कुछ भी डाल दोगे. मिट्टी डाल दोगे क्या? अगर मिट्टी भी डाल रहे हो तो कोई रीज़न है. सो लाइमस्टोन है तो क्यों, व्हाई? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइमस्टोन क्या हुआ है? लाइमस्टोन सबसे इंपॉर्टेंट लिखो, टेक्स अवे सबसे डेंजरस इम्प्योरिटी कौन सी थी जो हम लोग पार्ट 1 से पढ़ रहे हैं? द डेंजरस इम्प्योरिटी इन द आयरन ओर इज सल्फर. और आपने पढ़ा भी है साइंस के अंदर कि जो सल्फर है, सल्फर अगर एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा तो वो सल्फर डाइऑक्साइड बन के पानी से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जिसकी वजह से इट कॉजेज एसिड रेन. सो सल्फर इज अ वेरी डिजास्ट्रस इम्प्योरिटी. ओके, सो लाइमस्टोन क्या करता है? इट टेक्स सल्फर अवे. ठीक है, अब क्या होगा? एक फैक्टर तो ये करता है. लाइमस्टोन दूसरा क्या काम करता है? लाइमस्टोन दूसरा काम ये करता है, इट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट. इट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, दूसरा क्या काम करता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने तुमको क्या बताया अभी कि जो आयरन है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो उसके लिए तुमको कितना ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तो इट विल कॉस्ट यू वेरी मच. सो टू रिड्यूस द कॉस्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट, एंड लाइमस्टोन इज वन ऑफ द एलिमेंट विच रिड्यूसेस द मेल्टिंग पॉइंट. ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस. अब लाइमस्टोन क्या करता है? बेसिकली लाइमस्टोन होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, और ये क्या करता है? किसके साथ रिएक्ट करता है? सल्फर के साथ, और क्या बनाता है? स्लैग. तो CaCO3 जो टूटता है तो किसके साथ रिएक्ट करता है? सल्फर के साथ, और क्या बनाता है? स्लैग. तो ये जो हम लोग स्लैग की बात कर रहे हैं, ये कौन बना रहा है? बेसिकली लाइमस्टोन. लाइमस्टोन इज हेल्पिंग टू हैव स्लैग. ओके, और जो लिक्विड स्लैग है वो फ्लोट करता है ऊपर लिक्विड आयरन के. तो उससे क्या होता है? जैसे ऊपर फ्लोट, ये क्या होता है? इसकी डेंसिटी क्या होती है? लेस डेंसिटी. ये तो आ गया होगा आपको समझ में. तो जो अब तक स्लैग बनी गया आपका, तो डेंसिटी ऑफ स्लैग इज लेस देन डेंसिटी ऑफ आयरन. तो जिसकी वजह से क्या करता है? फ्लोट करता है ऑन आयरन. कौन सा आयरन? लिक्विड आयरन. व्हाट इज लिक्विड आयरन? इट इज पिग आयरन. व्हाट इज पिग आयरन? एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज पिग आयरन, गोल हो जाओगे. तो पिग आयरन मीन्स लिक्विड आयरन. ओके, so this is the basic difference between this. So this is what we have studied till now, and in the next lecture, the part 4, we are going to discuss about the distribution of the iron ore in our country India and around the world. Thank you so much, and please do subscribe and share with your friends and press the bell icon for more videos. Thank you.